آدھا برس ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی منظور شدہ 1,00,000 مکانات کے پہلے مرحلے کا عنقریب سنگ بنیاد رکھیں گے۔ 1 سال کے اندر انہیں مکمل کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر امکنہ پی سرینواس ریڈی کا خطاب۔ مجلسی ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں عید ملاد تقریب۔ SIR کے عمل میں سرگرمی سے حصہ لیں، عدم سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کریں، پارٹی لیڈرز اور کارکنوں کو صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی ہدایت۔ BJP اور کانگریس کو سبق سکھانا میری ذمہ داری، 1.5 سال اور محنت کریں، کانگریس نے ریتو بندھو کو ختم کیا، KTR کا الزام۔ سنگارینی سے متعلق مبینہ ریمارک پر BRS لیڈر سمن کو پولیس نے پارٹی دفتر سے کیا گرفتار، BRS کارکنوں کا احتجاج اور نعرے بازی۔ شدید گرمی کے باعث سیمسنگ موبائل فون شرٹ کی جیب میں پھٹ گیا، سابق سرپنچ بال بال بچ گئے، تلنگانہ کے کاماریڈی ضلع میں واقع۔ گنڈی پیٹ کے پاس غیر مجاز تعمیرات کے خلاف ہائیڈرا کی کارروائی، 5,500 کروڑ روپے کی اراضی بازیاب۔ چلتی بس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، بس جل کر راکھ، تلنگانہ کے نلگنڈے میں پیش آیا حادثہ۔ ناظرین، اس خبر کے ساتھ دیگر سیاسی خبروں پر نظر ڈالیں گے محمد اختر کے ساتھ۔ گورنر تلنگانہ شیو پرتاپ شکلا نے ریاست سے TB کے خاتمے اور نوجوانوں کو منشیات سے بچانے شعور بیداری مہم کی ضرورت پر زور دیا۔ گورنر نے آصف آباد ضلع کے دورے پر حکومت کی فلاحی اسکیمات اور ریڈ کراس سوسائٹی کی سرگرمیوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ گورنر نے کہا کہ بنیادی سطح پر عوام کو مرض TB کے مضر اثرات سے واقف کروایا جائے اور سماجی تنظیموں کو اس چیلنج سے نمٹنے آگے آنا ہوگا۔ ضلع عہدیداروں سے خطاب میں گورنر نے کہا کہ سرکاری ملازمت صرف تنخواہوں کے لیے نہیں بلکہ ان پر اہم سماجی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ منشیات کے خلاف شعور بیداری کے ذریعے نوجوان نسل کو اس لعنت سے بچایا جا سکتا ہے۔ حکومت اور رضاکارانہ تنظیموں کی اس میں مشترکہ ذمہ داری ہے۔ گورنر نے یہ بھی کہا کہ نوجوانوں کے لیے موجودہ حالات میں منشیات سے بڑا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسکول اور کالجز کی سطح پر منشیات کے خلاف منظم مہم کی ضرورت ہے۔ گورنر نے کہا کہ TB سے متاثرہ مریضوں کو ادویات کے ساتھ صحت بخش غذائیں فراہم کی جائیں۔ تلنگانہ حکومت نے ایک بار پھر سرکاری ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا ثبوت دیا ہے۔ حکومت نے اپنے وعدوں کو محض الفاظ تک محدود نہیں رکھا بلکہ انہیں عملی جامہ پہنا کر دکھایا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے اس سے قبل امپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی JAC کے قائدین کو یقین دہانی کرائی تھی کہ ملازمین کے طویل عرصے سے زیر التوا 6,000 کروڑ روپے کے واجبات 100 دنوں کے اندر ادا کر دیے جائیں گے۔ اس عزم کی سمت تیزی سے پیش رفت کرتے ہوئے وزیر مالیات و نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا کی ہدایات پر محکمہ مالیات کے اسپیشل چیف سیکرٹری سندیپ کمار سلطانیہ نے آج پہلے مرحلے کے تحت 2,000 کروڑ روپے جاری کرنے کے احکامات صادر کیے۔ جاری کردہ فنڈز کے ذریعے حکومت نے ریٹائرڈ ملازمین سے متعلق اہم ترین زیر التوا واجبات مکمل طور پر ادا کر دیے ہیں۔ ریٹائرڈ ملازمین کے جنرل پروویڈنٹ فنڈ GPF کے 100% واجبات کلیئر کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مئی 2025 تک کے تمام زیر التوا کمیوٹیشن واجبات بھی مکمل طور پر ادا کر دیے گئے ہیں۔
ریاستی وزیر برائے ہاؤسنگ تعلقات عامہ پی سریواس ریڈی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی جلد ہی منظور شدہ 1,00,000 مکانات کے پہلے مرحلے کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور 1 سال کے اندر انہیں مکمل کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ریاستی وزیر سرینواس ریڈی نے اپنے ساتھی وزراء پونم پربھاکر اور محمد اظہر الدین کے ساتھ بنجارہ ہلز میں تعمیر ہونے والے انٹیگریٹڈ سب رجسٹرار آفس کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سرینواس ریڈی نے کہا کہ کانگریس حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہی ہے کہ عوامی حکومت کی اسکیمیں غریبوں کی دہلیز تک پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مربوط عمارتیں اس لیے تعمیر کی جا رہی ہیں کہ تاکہ اسٹیمپ، رجسٹریشن، سروے اور دیگر محکمے جات ایک ہی جگہ پر دستیاب رہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تعمیرات کی ذمہ داری معروف ریل اسٹیٹ کمپنیوں کو دی جا رہی ہے تاکہ فنڈز کا بوجھ حکومت پر نہ ہو۔ ریاستی وزیر نے بتایا کہ ایس آر نگر، بنجارہ ہلز، گولکنڈہ سب رجسٹرار آفس بھی تعمیر ہوں گے۔ ان تعمیرات سے علاقے کے لوگوں کو روزگار کے علاوہ دوسری سہولیات بھی حاصل ہوں گی۔ చాలా సంతోషం మీ దీవెనలతో వచ్చిన ఈ ప్రజా ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తూ పేదవాడి ప్రభుత్వంగా ముద్రేసుకొని అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు పేదవాడి గుమ్మానికి చేస్తున్న ప్రభుత్వం మీ దీవెనలతో వచ్చిన మన ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వం। దీంట్లో భాగంగా స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్లో అనేక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి ఆనాటి భూముల ఇబ్బందులున్న ధరణిని బంగాళాఖాతంలో వేసి భూభారతను తీసుకొచ్చి ఈ స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్స్ ని భూభారతని ఒకే ప్లాట్ఫామ్ మీదకి తీసుకొచ్చే విధంగా అనేక కొత్త మార్పులు తీసుకొస్తూ ప్రజలకి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజలకి భూముల్లో కానీ రిజిస్ట్రేషన్లో కానీ భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులన్నీ తొలగిపోయే విధంగా అనేక కొత్త సంస్కరణలు తీసుకురావడం జరిగింది। شدید گرمی اور لو کے پیش نظر محکمہ موسمیات نے تلنگانہ کے کئی اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ضلع محبوب آباد، کھمم، سوریا پیٹ اور نرگنڈے میں آج شدید لو چلنے کا امکان ہے، جس کے باعث ان اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اسی طرح متحدہ عادل آباد، کریم نگر اور ورنگل اضلاع کے علاوہ نظام آباد، سدی پیٹ اور بھدرادری، کوتہ گوڑم اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات مرکز نے بتایا کہ آج متحدہ محبوب نگر اور نلگنڈا اضلاع میں گرج چمک، تیز ہواؤں اور ساتھ ہلکی سی درمیانی بارش ہونے کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بعض علاقوں میں 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور غیر ضروری طور پر دھوپ میں نکلنے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ بی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے کہا ہے کہ ہمیں 1 اور سال 1.5 سال محنت کرنی ہے۔ کانگریس اور بی جے پی نے جو تکالیف اور مشکلات ہمارے لیے پیدا کی انہیں سبق سکھانا میری ذمہ داری ہے۔ حیدرآباد حلقے میں پارٹی کی رکن سازی مہم سے متعلق پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کے ٹی آر نے کہا کہ جن لوگوں نے ہمیں ستایا ہے ان کا حساب برابر کیا جائے گا۔ کے ٹی آر نے تلنگانہ حکومت پر ریتو بندھو کو ختم کرنے کا بھی الزام عائد کیا۔ کے ٹی آر نے کہا کہ عوام کانگریس کی حکومت کو لے کر بے دخل کرنے کا ذہن بنا چکی ہے۔ ఇంకొక సంవత్సరం పాటు కష్టపడితే ఎక్కడోళ్ళం అక్కడ సంవత్సరంన్నర అరుచుకుంటే ఎక్కడోళ్ళం అక్కడ కరెక్ట్గా చూసుకుంటే ఆ తర్వాత హిసాబ్ కితాబ్ చేసేది చాలా ఉన్నది। మనం ఇవాళ సతాయించేటోడు, నగరాలు చేసేటోడు కాంగ్రెస్ ఓడు, కాంగ్రెస్ అని చూసుకుని ఎగిరే బీజేపీ ఓడు, చాలా మంది ఇష్ట ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు। వాళ్ళందరికీ మిత్తితో సహా చెల్లించే బాధ్యత నాది, నేను చెప్తుంటా పక్క। కానీ
बीआरएस पार्टी के लीडर और साबिक एमएलए बी सुमन को पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन से पुलिस ने तहवील में लिया है। पुलिस जब तेलंगाना भवन पहुंची तो पार्टी कारकुनों की तरफ से एहतजाज किया गया। तेलंगाना भवन के पास कशीदगी भी देखी गई। बीआरएस के साबिक एमएलए की तरफ से सिंगारेनी से मुताल्लिक़ उनके रिमार्क्स पर एबिट्स पुलिस स्टेशन के अलावा रियासत के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस में शिकायतें दर्ज करवाई गई थी। गिरफ्तारी के बाद सुमन को तिबी मुआयने के लिए ले जाया जा सकता है और फिर उन्हें अदालत में पेश किया जा सकता है। तेलंगाना भवन के पास बीआरएस कारकुनों की तरफ से तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। పదుల సంఖ్యలో కేసులు పెట్టింది. మరి పాత రికార్డు వీళ్ళు బద్దలు కొడతారో ఏందో తెలియదు. గతంలో 226 కేసులు ఉండే నా మీద తెలంగాణ ఉద్యమంలో. ఆ రికార్డు బద్దలు కొట్టాలనుకుంటారో ఏమో ఇప్పటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. అక్రమంగా అనేక కేసులు పెట్టి నన్ను వేధిస్తూ ఉంది. మొన్నటికి మొన్న మీరు చూస్తే క్యాతన్పల్లి మున్సిపాలిటీలో 22 వార్డుల్లో 14 వార్డులు మేము గెలుచుకుంటే కేవలం 7 వార్డులు గెలుచుకున్న కాంగ్రెస్ అన్యాయంగా క్యాతన్పల్లి మున్సిపాలిటీ చైర్మన్ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకోవాలని కుట్ర చేసి నా మీద నాతో పాటు మా నాయకులు 25 మంది మీద అక్రమ కేసులు పెట్టి నన్ను ఆదిలాబాద్ జైల్లో 16 రోజుల పాటు ఉంచారు. సో అక్కడ అనేక రకాలుగా జైల్లో కూడా ఇబ్బంది పెట్టిర్రు. నాకు థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే ట్యాబ్లెట్లు ఇవ్వలే. దాదాపు 4-5 రోజుల పాటు విపరీతమైన చలి అక్కడ ఉంటుంది. ఫిబ్రవరి మాసం చలి బాగుంటే నాకు బెడ్షీట్ ఇవ్వలే. అనేక రకాలుగా నన్ను రిస్ట్రిక్షన్స్లో ఉంచుతూ వేధించింది. అయినా వాళ్ళ కడుపు మంట ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిది, మంత్రి వివేక్ది, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పెద్దల కడుపు మంట చల్లారనట్టుంది. మళ్ళీ ఇప్పుడు అక్రమంగా కేసులు పెట్టిర్రు. నేను 2014లో పెద్దపల్లి ఎంపీగా గెలిచిన, సింగరేణి కార్మికుల ఓట్లతో గెలిచిన ఆనాడు. 2018లో చెన్నూరు నుండి ఎమ్మెల్యే గెలిచిన, మా మందమరి రామకృష్ణాపూర్ కోల్బెల్ట్ ఏరియా పెద్ద ఎత్తున నాకు ఓట్లేసి ఆనాడు ఆశీర్వదించారు. ఇప్పుడు మేము ఓడిపోయినప్పటికీ కూడా ఆ ప్రాంత కార్మికుల పట్ల ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి అన్యాయాలు, మోసాలు कांग्रेस आला कमान से तलबी पर आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदर वाईएस शर्मिला नई दिल्ली पहुंची। उन्होंने लोकसभा में कायद अपोजिशन राहुल गांधी से मुलाकात की। वाईएस शर्मिला की नई दिल्ली आमद पर पार्टी हलकों में कयास आराई की जा रही है कि हाई कमान उन्हें कर्नाटक से राज्यसभा के लिए नामजद कर सकता है। कर्नाटक में राज्यसभा की 3 नशिस्तों पर कांग्रेस पार्टी की कामयाबी के इम्कानात हैं। उम्मीद की जा रही है कि वाईएस शर्मिला को कर्नाटक से राज्यसभा के लिए मुंतखब करते हुए आंध्र प्रदेश में पार्टी के इस्तेहकाम की राह हमवार की जाएगी। कांग्रेस में शमूलियत के मौके पर हाईकमान ने उन्हें राज्यसभा रुकनीत का वादा किया था। बताया जाता है कि सदर एआईसीसी मल्लिकार्जुन खड़गे को फिर एक मरतबा कर्नाटक से राज्यसभा के लिए मुंतखब किया जाएगा। बाकी 2 नशिस्तों में एक नशिस्त वाईएस शर्मिला के लिए मख्तस किए जाने का इम्कान है। सदर मजलिस रुकने पार्लियामानत बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अवाम से तेलंगाना में होने वाले एसआईआर के अमल को संजीदगी से लेने का मशवरा दिया है। गुज़िश्ता रात दारुस्सलाम में मुनक़िदा ईद मिलाद तक़रीब से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि ये ज़िंदगी और मौत का मामला है। गुज़िश्ता 1.5 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एसआईआर के मामले में मुसलसल अवाम की रहनुमाई करती आ रही है और उसके असरात से भी आगाह करती रही है। 25 जून से एसआईआर का अमल शुरू होगा और इस दौरान अपनी तफसीलात का इंदराज करवाएं और लापरवाही ना बरतें। बैरिस्टर ओवैसी ने पार्टी लीडर्स और कारकुनों को हिदायत दी है कि एसआईआर के अमल में जंगी खतूत पर काम करें। सदर मजलिस ने कहा कि मजलिस मजहब को देख कर नहीं बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर काम कर रही है। मेरी आप तमाम से ये दरख्वास्त है कि 25 जून से आप जानते हैं कि एसआईआर शुरू होने वाला है और एसआईआर जब शुरू होगा 25 जून से तो मुख्तलिफ वोटर्स के घर पर एन्यूमिनेटर फॉर्म के साथ बूथ लेवल ऑफिसर आएगा और वो फॉर्म उस घर पर, उस वोटर के घर पर या वोटर को देकर जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, इलेक्शन कमीशन ने जो सहूलत दी है, हमने मजलिस के अरकान को, ज़िम्मेदारों को BLA बनाया है, बूथ लेवल एजेंट्स बनाया है। तो मैं उन तमाम वोटर्स से अपील कर रहा हूं कि जब 25 जून से SIR शुरू होगा तेलंगाना में,
आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि इसको बड़ी सीरियस तरीके से लीजिए। ये बड़ा हिसास मसला है और मैं जज्बात में लाने के लिए नहीं, ना आपको डराने के लिए कह रहा हूँ कि यकीनन ये हमारी ज़िंदगी और मौत का एक मसला है। जब आपको BLO आकर बूथ लेवल ऑफिसर आपको फॉर्म देगा तो आप उस फॉर्म को पढ़िए। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप मंजलिस के जिम्मेदारों को जो BLA हैं या फिर किसी अपने जानकार को जिस पर आप पर भरोसा है उनको बताइए और ये देखिए कि मैपिंग सही तरीके से हुई या नहीं हुई है। और मैपिंग सही होना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर मैपिंग सही होगी तो जो ड्राफ्ट लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम आएगा। तो ये हम तमाम की जिम्मेदारी है और अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि पिछले 1.5 महीने से अगर पूरे भारत में अगर किसी सियासी जमात ने वोटर्स का नाम को SIR में शामिल होने के लिए अगर किसी ने काम किया और कर रही है तो उस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमने ऐप बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह दारुस्सलाम के इस मरकज़ी दफ्तर पर यहाँ पर मजलिस ने यहाँ पर ट्रेनिंग दी। यहाँ पर लोग वोटर आते हैं बिला लिहाज मज़हब मिल्लत, अपना नाम चेक करते हैं 2002 की वोटर लिस्ट में और उनकी मैपिंग की जाती है। वही इन्यूमरेटर फॉर्म जो इलेक्शन कमीशन का है उसी तरीके से हम बताते हैं कि 2002 में किस तरह कहाँ पर थे, किस जगह पर थे, नाम लिखते हैं। मैं आप पे बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आपका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं आया है तो आपकी मैपिंग हो सकती है अपने माँ बाप के ज़रिए या फिर अपने दादा और दादी या फिर नाना और नानी, और अगर वो मैपिंग हो जाती है तो उसका भी फॉर्म में हम जिक्र करते हैं। अगर किसी का नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं है तो इलेक्शन कमीशन ने 13 डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज़ात का जिक्र किया है। आप उन दस्तावेज़ात को लगा सकते हैं जिसमें पासपोर्ट भी शामिल है, बर्थ सर्टिफिकेट भी है, SSC की मार्कशीट है। और मैं आपको ये बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि आज से 4 महीने पहले मजलिस के एक वफद ने हुकूमत तेलंगाना के ज़िम्मेदारों से मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से मैं खुद जाकर मिला, उनको SIR के बारे में बताया और हमने उनसे ये नुमाइंदगी की कि आप अपने हुकूमत के 100 दिन मना रहे हैं, कुछ प्रोग्राम चल रहा है। हमने हुकूमत से गुजारिश की कि मी सेवा सेंटर पर आप SSC की मार्कशीट को रखिए, 12th की मार्कशीट को रखिए, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट रखिए। और हमने ये भी गुजारिश की क्योंकि SIR का टाइम सिर्फ 1 महीने का होता है, जल्द से जल्द वहाँ से सर्टिफिकेट मिल जाए जो एप्लीकेशन देते हैं। तो मुझे जानकर खुशी हुई कि हुकूमत ने मी सेवा सेंटर पर वो सहूलतें क़ायम की हैं और हर असेंबली हलके में नए 5 मी सेवा सेंटर काम करें, सिर्फ हैदराबाद नहीं पूरे तेलंगाना में। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जाइए उस मी सेवा सेंटर पर एप्लीकेशन दीजिए और फिर उस डॉक्यूमेंट को हासिल करिए। अगर आप बैकवर्ड क्लास में आप आते हैं, वो बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट निकालिए, चाहे वो BCA हो, B हो, C हो, D हो या E हो, वो भी इलेक्शन कमीशन के उस एन्यूमरेशन फॉर्म पर आप लगा के दे सकते हैं। इससे पहले सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने ईद मिलाद तकरीब से खिताब करते हुए ईद उल अज़हा के तनाजुर में शरपसंदों की सरगर्मियों से लेकर गोश्त और अंडों में पाबंदी को लेकर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि त्योहारों के दौरान अगर गोश्त और अंडों पर पाबंदी लगाई जाती है तो फिर रमज़ान में शराब पर भी पाबंदी ज़रूरी है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि संघ परिवार पूरे मुल्क में लोगों को वेजिटेरियन बनाना चाहता है। यकसा सिविल कोड के नाम पर मुसलमानों की मजहबी आज़ादी को छीन लेना संघ परिवार का मकसद है। ये पूरे शुरू हो गए, नहीं गोश्त क्यों खाते, नहीं खाना गोश्त। हद तो ये हो गई कि
उत्तर प्रदेश में, और वो खाने निकाले। 75 जिले उत्तर प्रदेश में हैं और 75 जिलों में एक किताब निकाले। स्टेट टाइम्स 18 मई की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं। उन्होंने 75 जिलों में खाना क्या होता 200 डिश निकाले। उत्तर प्रदेश की सरकार, आपको मालूम उसमें एक गोश्त की डिश नहीं है। 75 जिले में, जबकि खुद हुकूमत का सर्वे यह बोलता है कि 53% लोग उत्तर प्रदेश में गोश्त खाते हैं। 75 जिलों की गोश्त की खाने की, ये जिले में ये खाना रहता ना। अब जैसा बारकस चले गए आप, मिट्टी हरीस मिलती सुबह सुबह, वहां पे कहीं नहीं मिलती, लोग खाते जाके, मैं भी खाया। अब मैं बारकस में बोलूंगा, बारकस में अच्छा मिलता मगर नहीं, वहां पे खाली अंजीर मिलता, वो बोल दूंगा तो लोग बोलेंगे पागल है। खाने की बात आई तो मिट्टी हरीस की बात करो, मंदी की बात करो, नहीं उड़ा दिए। अच्छा, यूनेस्को एक तारीफ किया भारत की, लखनऊ की। उसने कहा कि दिस इज द सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी लिस्ट, माने खाने का शहर है। आपको मालूम, जो मिनिस्टर ऑफ कल्चर है जनाब गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, वो इस यूनेस्को की बात को तारीफ किए, मगर पोस्टर में गोश्त नहीं था, तरकारी थी खाली। अरे तुम क्यों वेजिटेरियन बनाना चाह रहे हमारे को, ये कर दिए। अच्छा, फिर आप देखते झीलों और तालाबों के हुदूद में गैर मजाज कब्जों और तामीरात के खिलाफ हाइड्रा की कार्रवाइयाँ जारी हैं। हाइड्रा की टीमों ने रंगारेड्डी ज़िले गंडीपेट मंडल पुपालागुड़ा में एक और सरकारी अराजी पर कायम ढांचों को मुनहदिम किया है। बताया जाता है कि मिशकनचेरू वो झील पर गैर मजाज तामीरात थीं। ये अराजी तकरीबन 52.20 एकड़ बताई गई है और इसकी कीमत 5,500 करोड़ रुपये है। बताया गया है कि हाइड्रा की तरफ से अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाड़ लगाई गई है। यह भी इत्तला है कि अराजी को खाली करने के लिए 2 महीनों का वक्त दिया गया था। अराजी पर झोपड़ियाँ भी डाली गई थी, ताहम झोपड़ियों में मुक़ीम लोग वहाँ से चले गए थे। मानसून की आमद के तनाज़ुर में कमिश्नर हाइड्रा A.V. रंगनाथ ने बल्दिया और ट्रैफिक पुलिस के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद किया। इजलास में बरसात के दौरान पानी जमा होने के 523 मकामात की निशानदेही की गई, जिसमें 105 अहम मकामात शामिल थे। हाइड्रा कमिश्नर ने हिदायत दी कि नालों की सफाई में तेज़ी लाई जाए, जहाँ कहीं भी पानी जमा होता है वहाँ भी मरम्मती काम किए जाएँ। तमाम महकमेजात को बाहमी तालमेल के ज़रिए मानसून की आमद के पेश नज़र तैयारियों की हिदायत दी गई है। कारगुजार सदर BRS KT रामाराव ने शांति नगर में वाक़ मरहूम एडवोकेट मोइज़ुद्दीन के मकान पहुंचकर उनके फर्जन एडवोकेट फरहानुद्दीन से मुलाकात की और उन्हें पुरसा भी दिया। KT रामाराव ने एडवोकेट मोइज़ुद्दीन के कत्ल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और शहर के लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल और हुकूमत के रवैये पर शदीद सवालात उठाए। इस मौके पर RS प्रवीण कुमार और अब्दुल्ला सोहेल के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
सरकारी अराजियात हो या वक्फ अराजियात, बेईमान और धोखेबाजों की सरगर्मियां जारी हैं। साइबराबाद पुलिस ने ऐसे 3 अफराद को गिरफ्तार किया है जो जाली हुकूमत के अहकाम होने का दावा करते हुए गंडीपेट के पास 10 एकड़ अराजी की मुबैना फ़रोख्त में मुलविस पाए गए। बताया जाता है कि तकरीबन 3.5 करोड़ फी एकड़ के हिसाब से अराजी फ़रोख्त करने की कोशिश की गई। इस टोली में YCP का साबिक़ रुकन असम्बली बी ब्रह्मानाइडो भी मुलविस बताया गया है, लेकिन वो ताहाल मफरूर है। ఫేక్ జీవోస్ క్రియేట్ చేసి అవి వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో సర్క్యులేట్ చేసి కోర్టులని తర్వాత రెవెన్యూ అఫీషియల్స్ ని కూడా తప్పుదావ పెట్టించి రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లో దీన్ని మిస్లీడ్ చేస్తూ ఒక డబ్బులు సంపాదించాలనే కుట్రని నార్సింగి పోలీసులు, సైబర్ క్రైమ్ అండ్ ఈఓడబ్ల్యూ టీమ్స్ కలిసి క్రాక్ చేయడం జరిగింది. విషయాల్లోకి వస్తే గండిపేటలో సర్వే నెంబర్ 18లో 104 ఎకరాల 25 గుంటల ప్రభుత్వ భూమి ఉంది. ఇది ప్రభుత్వ రికార్డులలో కాస్రపాణి అంటే 1954 నుంచి కూడా ప్రభుత్వ భూమిగానే అది రికార్డులలో ఉంటూ వస్తుంది. దీన్ని అదే ఊరు సంబంధించిన నిమ్మల దశరథ్ అని చెప్పి ఆ గ్రామస్తుల్లో ఒక కుటుంబం దాంట్లోకి అప్పుడప్పుడు మధ్యలో వచ్చిపోతూ ఒక 10 ఎకరాలని ఇది మాకే వస్తుంది అని చెప్పి ఒకటి ఫాల్స్ క్లెయిమ్ కూడా స్టార్ట్ చేయటం, రెవెన్యూ అఫీషియల్స్ వాళ్ళని ఖాళీ చేయించాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని తెలుసుకొని 2012లో హైకోర్టులో ఒక రిట్ పిటిషన్ కూడా ఫైల్ చేయడం జరిగింది. ఆ రిట్ పిటిషన్ పెండింగ్ ఉన్నప్పుడే ఈ నిమ్మల ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన వాళ్ళు రుద్రరాజు రామకృష్ణరాజు అని చెప్పి ఒక వ్యక్తికి అగ్రిమెంట్ చేయటం, ఆ వ్యక్తి దాన్ని ఫాలో అప్ చేస్తూ ఒక సునీల్ అనే ఒక వ్యక్తిని విజయవాడ నుంచి తీసుకొచ్చి ఆ భూమిలో ఒక రూమ్ కట్టించి అక్కడ పెట్టడం జరిగింది. ఇది ఇలా ఉంటే 2 సంవత్సరాలు तेलंगाना में धान की वक्त पर खरीदारी ना होने पर किसान बरहम देखे जा रहे हैं। मेदक ज़िले के चिकुंडा मंडल में किसान ने मुबैना तौर पर धान की फ़रोख्त ना होने पर ख़ुदकुशी की कोशिश की। किसान ने ख़रीदारी मराकज़ के ज़िम्मेदारों और मिल्स मालिकान पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। తాకలవానిపల్లె విలేజ్ గన్నేరువరం మండలం కరీంనగర్ జిల్లా. ఇక్కడ ఏంటంటే మాకు వచ్చింది డిసిఎంఎస్ సెంటర్ శ్రీధర్ రెడ్డి గారు నడిపేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఉన్న సిబ్బంది ఆయన పేరేం బుర్ర రమేష్ని పెట్టుకున్నాడు. ఆయన పద్ధతి అంటూ పాడు అంటూ ఏం లేదు. ఎవరై వడ్డు జోకితే ఎప్పుడు జోకుతుండో ఎవరైతే జోకుతుండో ఎవరైతే చెప్తలేదు. సీరియల్ అనేది లేదు, ఏది లేదు. ఆయన ఇష్టరాజ్యంగా జోకుతుండు. ఇది అసలు ఏంది అర్థమైతే నెల రోజులైనా కూడా నెల 15 రోజులైనా కూడా వడ్లు కొనే పరిస్థితి లేదు. ఇప్పుడు వర్షాలు పడుతున్నాయి, రోని కార్తె వచ్చింది. ఇప్పుడు రైతులకు మాకు ఐకేపీ సెంటర్ లేక రైతు భూమిలో పోసుకున్నాం. రైతు తీయమంటుండు. మేము ఎక్కడ పోని పరిస్థితి. వడ్డు చూస్తే ఈ బాధ, మక్కలు చూస్తే అక్కడ మాదాపూర్ సెంటర్లో పోసిన మక్కలకు ఆ బాధ ఉంది, వడ్లకి ఈ బాధ ఉంది. మేము ఏం చేసుడు, సచ్చుడా బతుకుడా, రైతు పరిస్థితి ఏంది మరి తెలియాలని కోరుచున్నాను. मोहब्बत के नाम पर लड़की को ब्लैकमेल और हिरासा करने वाले नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक संतोष कुमार ने फार्मेसी की तालिबा को हिरासा किया, लड़की की तस्वीर और वीडियोस बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। बताया है कि लड़की के भाई को भी संतोष ने तस्वीर भेजी थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने संतोष को गिरफ्तार किया है।
संगारेड्डी जिले के पटनचेरू में वाक़ सजावटी अशिया के गोदाम में आग लग गई। आग की इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़े पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। ప్లాస్టిక్ ఉంటాయి ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ అంతా ఎఫ్ఆర్పి ఒక్కసారి అది పోతూనే ఉంటుంది. లోపల तेलंगाना में शदीद गर्मी के दरमियान एक तशवीशनाक वाक़या पेश आया, जहां ज़िले कामारेड्डी के मखदूमपुर गांव में साबिक़ सरपंच चंद्रगौड़ की शर्ट की जेब में रखा सैमसंग मोबाइल फ़ोन अचानक ज़ोरदार आवाज़ के साथ फट गया। वाक़े के वक्त चंद्रगौड़ अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ थे कि अचानक जेब से धुआं उठने लगा और फ़ोन में धमाका हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक चंद्रगौड़ ने फौरी तौर पर सूरत हाल को भांपते हुए फुर्ती का मुजाहरा किया और अपनी शर्ट की जेब से फ़ोन निकाल दिया, जिसके बायस एक बड़ा हादसा टल गया। ताहम फ़ोन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। वाक़े के बाद मौके पर मौजूद अफराद में खौफ व हिरास फैल गया और बड़ी तादाद में लोग वहां जमा हो गए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक शदीद गर्मी और ज़्यादा दर्जे हरारत के बायस फ़ोन की बैटरी में ख़राबी पैदा होने के नतीजे में धमाका होने का शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और साबिक़ सरपंच महफूज रहे। माहिरीन ने आवाम को मशवरा दिया है कि शदीद गर्मी के मौसम में मोबाइल फ़ोन को बराह रास्त धूप में रखने से गुरेज करें और बैटरी गर्म महसूस होने की सूरत में फ़ौरी एहतियाती इक़दामात करें ताकि ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। वाक़े की वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। तेलंगाना के नलगुंडा ज़िले के चटियाल मंडल के बड़े कापरती इलाके में हफ्ते की सुबह एक खानगी ट्रैवल्स बस में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में बस मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई। ताहम ड्राइवर और क्लीनर की बरवक्त हाजिर दिमागी के बायस एक बड़ा हादसा टल गया और तमाम मुसाफिर महफूज रहे। इत्तलात के मुताबिक ये बस हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के काकीनाडा शहर जा रही थी कि रास्ते में अचानक बस के इंजन के हिस्से से धुआं निकलना शुरू हो गया। सूरत हाल को भांपते हुए ड्राइवर ने फौरी तौर पर बस को सड़क के किनारे रोक दिया और क्लीनर की मदद से तमाम मुसाफिरों को जल्दी से नीचे उतार दिया। इब्तदाई तहकीकात में शुबा किया जा रहा है कि हादसा शॉर्ट सर्किट के बायस पेश आया। ताहम पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी।
सैफाबाद पुलिस ने एक बैन रियासती गांजा मुंतकली के रैकेट को बेनकाब करते हुए 2 खवातीन को गिरफ्तार किया, जबकि उनके कब्जे से 21.251 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया, जिसकी मालियत कई लाख रुपये बताई गई है। एसीपी सैफाबाद डिवीजन आर संजय कुमार की निगरानी में ये कार्रवाई की गई। आखिर में देखते हैं सुर्खियां अखबार में। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी मंजूर शुदा 1 लाख मकानात के पहले मरहले का करीब संगे बुनियाद रखेंगे। 1 साल के अंदर उन्हें मुकम्मल करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर इम्काना पी श्रीवास रेड्डी का खिताब। मजलिसी हेडक्वार्टर दारुसलाम में ईद मिलाद तकरीब। SIR के अमल में सरगर्मी से हिस्सा लें, अदम संजीदगी का मुजाहरा ना करें। पार्टी लीडर्स और कारकुनों को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत। बीजेपी और कांग्रेस को सबक सिखाना मेरी जिम्मेदारी, 1-1.5 साल और मेहनत करें। कांग्रेस ने रैतू बंधु को खत्म किया, KTR का इल्जाम। सिंगारेनी से मुतालिक मुबैना रिमार्क पर BRS लीडर सुमन को पुलिस ने पार्टी दफ्तर से किया गिरफ्तार। BRS कारकुनों का एहतजाज और नारेबाजी। शदीद गर्मी के बायस सैमसंग मोबाइल फोन शर्ट की जेब में फट गया, साबिक सरपंच बाल बाल बच गए। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में वाक़या। गंडीपेट के पास गैर मिजाज तामीरात के खिलाफ हाइड्रा की कार्रवाई, 5,500 करोड़ रुपए की अराजी बाजियाब। चलती बस में अचानक आग भड़क उठी, बस जलकर राख। तेलंगाना के नलगुंडे में पेश आया हादसा। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।